So here, in accountancy, there are three main types of account. First one that is a personal account, and second one is impersonal account. Okay. So basically, there are two types of account: personal account and impersonal account. Okay. So in personal account, only name of persons and companies are included. Okay. And second one is impersonal. Okay. So in impersonal, there are two types of account: real account and nominal account. Okay. So there are two main types of account. First one is personal and second one is impersonal. In personal account, the only name of persons and companies is recorded. Okay. And in impersonal account, the real account and nominal account is included. Okay. So all these three account is most important accounts for your accountancy. Okay. So uh, इसको अच्छी तरह समझ लेना ओके बिकॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स फॉर योर स्टडी ओके सो फर्स्ट वन इज दैट इज पर्सनल अकाउंट ओके सो ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस ऑल दिस ओके अपने नोटबुक्स ओपन करो ऑल ऑफ यू ओपन योर नोटबुक्स ऑल ऑफ यू सो ऑल ऑफ यू ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ अकाउंट उसमें दो पार्ट कर दो पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट ओके फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल ओके टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखो ओके सो यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स लिखने हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल ओके फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल आपको ड्रॉ करना है पहले लिखना है आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट और उसमें दो पार्ट करने हैं पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट अभी आया आवाज क्लियर अभी भी नहीं आ रहा है तो शायद कुछ नेट में इशू होगा सो टाइप्स ऑफ अकाउंट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट अभी आ रहा है आवाज क्लियर Okay. So there are two main types of account. First one is personal account and second one is impersonal account. Okay. Take out your notebooks and write down these two heading. Okay. In impersonal there are two types of account. उसमें उसके नीचे लिखो impersonal में real account and nominal account. Real account and nominal account. So first record here personal account. Personal account लिखो पहले. First लिखो personal account. Heading दे दो personal account. So उसमें लिखो in personal account there are 7 artificial persons. Okay. उसमें लिखो in personal account there are 7 artificial persons created by law. There are 7 artificial persons created by law. Number 1 individual. हाँ, there are 7 artificial persons created by law. There are 7 artificial persons created by law. लिखा आपने? There are 7 artificial persons created by law. लिखा आपने? Number 1 individual. Number 1 individual. उसमें लिखो individual में teachers, doctors, lawyer, teachers, doctors, lawyer, chartered accountant, departmental stores, departmental stores, etc., etc.
are included in personal account, etc. are included in personal account, etc. are included in personal account. लिखा आपने? Are recorded in personal account. Second one is private company. Second one is private company. Now in private company there is no big example. Okay, so record here Punjab Travels, private company. There is no big example. So record here Punjab Travels, Srinath Travels. If anyone you have, then give me say, then give me that name of company. Okay. आपको कुछ पता हो प्राइवेट कंपनी में कोई फेमस कंपनी हो, आप जानते हो, ऐसा कोई है? Girls and boys, if you know anyone, any company, private company. Okay. So here examples are Punjab Travels and next one is Srinath Travels. Okay. Next one that is a public company. Next one is public company. So public company में क्या होगा? Public company that is a name of sorry public company में बहुत सारी examples है जैसे Reliance है, Tata है, okay, then that is a Maruti Suzuki है, then Bajaj, Honda, okay, then Godrej. All these are included in public company. Okay, ITC. Okay, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है. ओके पब्लिक कंपनी के लिए तो आप कोई भी आप लिख सकते हो. रिलायंस लिख दो पहले. रिलायंस, टाटा, गोदरेज, देन मारुति, Honda, Bajaj. So all these are included in public company and all public companies included in personal account. तो जितने भी हमने आपको अभी तक एग्जाम्पल लिखा है इंडिविजुअल, प्राइवेट, पब्लिक, ये सारे पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे. ओके. थर्ड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी. ओके. सो गवर्नमेंट में कौन कौन सा आता है? एनीवन प्लीज. गवर्नमेंट में कौन आएगा? गिव एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. बॉयज एंड गर्ल्स, आपके पास कोई एग्जांपल हो गवर्नमेंट कंपनी का? हाँ, आपके पास कोई एग्जांपल हो गवर्नमेंट कंपनी का? हाँ, कौन सा? हाँ, यस, LIC. देन LIC के बाद LIC, then railway, post and telegraph, okay, defense, government schools and colleges. Okay, so लिखो पहले लिखो LIC. LIC के बाद लिखो रेलवे. LIC के बाद लिखो रेलवे. लिखा आपने? LIC के बाद लिखो रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. पोस्ट एंड टेलीग्राफ. हाँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. नेक्स्ट वन डिफेंस. नेक्स्ट वन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. गवर्नमेंट schools and colleges, etc. Okay, etc. are included in personal account. Okay, तो ये सारा किसमें आएगा? गवर्नमेंट में आएगा. and all these are included in personal account. Okay. Next one, that is a partnership. Okay.
नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा. एनी पार्टनरशिप फॉर्म ओके इज इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे कोई फेमस नाम नहीं है पार्टनरशिप का. ओके, सो जस्ट राइट ऑन पार्टनरशिप. ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पार्टनरशिप के बाद होगा आपका, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, सो HUF किस में आएगा? वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आएगा. ओके, सो हियर HUF पार्टनरशिप, देन नेक्स्ट वन दैट इज कोऑपरेटिव. ओके, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. HUF लिखो, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. लिखा आपने? नेक्स्ट वन, हाँ बोलो. हाँ, नेक्स्ट वन एग्जांपल इज दैट इज कोऑपरेटिव. ओके, कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव में एग्जांपल है अमूल का. ओके, अमूल दे आर ओपन देयर अकाउंट्स अंडर द हेडिंग कोऑपरेटिव. ओके, so cooperative is the example of Amul. Okay, so Amul is the example of cooperative. Okay, तो जो Amul है, so Amul Milk. Okay, that is they are opening their accounts under the heading cooperative. Okay, so cooperative main aim is not profit. Cooperative main aim is not profit, but giving the goods and services at reasonable rate. पर यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है कि अमूल जो है वो सबसे ज्यादा पैसे लेता है दूध का. ओके, ऐसा क्यों है? Because of monopoly. Okay, so there is no other company who distribute this milk. Okay, only one company is there nowadays. Okay, and that is Amul. That's why there is a monopoly of Amul. Okay, तो जब भी मोनोपोली हो जाएगी क्या होगा कि वो जो भी करना है वो कर सकता है. ओके, जब भी मोनोपोली हो जाएगी तो क्या होगा कि जो भी कुछ करना है वो आराम से वो कर सकता है. ओके, सो अमूल किस में आएगा? अमूल किस में आएगा? दैट इज अ कोऑपरेटिव. ओके, अमूल किस में आएगा? कोऑपरेटिव में आएगा. ओके, सो here examples, 7 examples. Okay, first one is individual, second one is private company, third one is public company, fourth one is government, fifth one is cooperative, next one is partnership, and last one is HUF. Okay, तो ये 7 आर्टिफिशियल पर्सन्स है. ये सारे के सारे आपको आएंगे पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे. ओके, एंड प्लस लायबिलिटी. ओके, तो इसमें लिखो नेक्स्ट वन प्लस लायबिलिटी. ओके, लायबिलिटी यानी जो आपको पैसा देना बाकी है, दैट इज इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट. ओके, एग्जांपल लोन. ओके, जो आपने बैंक से लोन लिया है, दैट इज आल्सो कम्स इन दिस अकाउंट. ओके, हाँ 2 मिनट अभी आपको एक मेरे को पूछना है कि बुक्स किसने नहीं दी. ओके, तो मैं आपको जो नाम बोल रहा हूँ, ओके, जो बुक्स नहीं दी. ओके, तो वत्सल ने बुक नहीं दी. वत्सल है प्रेजेंट है अभी ग्रुप में है? वत्सल आर यू प्रेजेंट इन ग्रुप? हिमल की बुक नहीं आई, वत्सल की बुक नहीं आई, देवांशु की बुक नहीं आई, देन ब्रिज की बुक नहीं आई, ब्रिज पटेल. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन दैट इज आर्या. ओके, आर्या की बुक, हाँ सॉरी उसकी PDF आ गई. ओके, दिग्विजय सिंह की बुक नहीं आई, जय कुमार की बुक नहीं आई, प्रेम की बुक नहीं आई, प्रियांश की बुक नहीं आई. तो ये जो बुक नहीं आई है, ओके, वो अभी यहाँ पे है ग्रुप में है वो लोग जिसके भी मैंने अभी नाम लिए है. हाँ, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, जय 2 मिनट. हाँ, जय 2 मिनट. जय कहाँ गया? दो मिनट. जय दैट इज जय कुमार, मुकेश भाई, महेश्वरी, वो ग्रुप में अभी है. हाँ, महेश्वरी जय ग्रुप, महेश्वरी जय कुमार है ग्रुप में अभी नहीं है ना? तो भी जिसके नाम लिए उनको देना है. ओके, बुक्स कवित का है नाम, दिग्विजय का है नाम, देन प्रेम का है, नेक्स्ट वत्सल है, संजय है,
देवांशु है, विकास है, विकास ग्रुप में है अभी। हाँ, विकास तो एक ही है भाई। सॉरी विनीत, 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 सॉरी विनीत है यहाँ पे। हाँ, विकास है, विकास मणिराम, ओके। परासर, विकास मणिराम, ओके। उसके बाद द्रिज, द्रिज पटेल, उसका भी बुक आया नहीं है। दिग्विजय का बुक नहीं आया, ओके। सो भाई आपके बुक्स नहीं आएंगे वो नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो आपको डिफिकल्टी होगी लास्ट में, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन वी स्टार्ट हियर। क्या था अपना? हाँ, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था? दैट इज लोन, ओके। लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज आल्सो इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। सप्लायर्स का आपका जो पेमेंट बाकी है, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आल्सो इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का भी आपका पैसा देना बाकी है, दैट इज इंक्लूडेड इन personal account, okay. So all these are included in personal account. Next heading is now real account, okay. So write down next heading is real account. तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे प्रेजेंट कौन है? हनी है, देन आर्ची है, और नहीं, आप मैं से बोल रहा हूँ कि कौन कौन प्रेजेंट है, ओके। देवांगी प्रेजेंट है, दिया है, दीक्षित पटेल है, दिया प्रजापति है, यशिता चौधरी है, देन काजल है, काजल शर्मा, कंचन महेश्वरी, कुशांक मकवाणा, कारिया है, महिमा है, मैत्री चौहान, निष्का, देन नीलकंठ, देन प्रियल, देन प्रियांशी, राधा, राज यादव, रिया शाह, रोनी, ओके रोनी, देन श्रद्धा, श्रेया पटेल, शुभ, सोम्या, तनिषा, तन्वी एंड याग्निक, ओके। सो ये थे फॉर एग्जांपल, ये था अपना पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हेडिंग लिखो रियल अकाउंट। इन रियल अकाउंट्स में लिखो, इन रियल अकाउंट assets and goods are recorded. In real account, assets and goods are included. In real account, assets and goods are included. So उसके नीचे हेडिंग लिखो assets, okay. Assets में सारे assets, okay. Example जैसे फिक्स एसेट्स, ओके। फिक्स एसेट्स में दो आते हैं, इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ओके। फिक्स में दो आते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? फिक्स डिपॉजिट आएगा, ओके। परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दीज आर द इन्वेस्टमेंट, ओके। उसके बाद है अपना करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ओके। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, ओके। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट वन इज फिक्टिशियस एसेट्स, ओके। नेक्स्ट वन इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो उसमें कौन से आएंगे? देयर इज ओनली वन एग्जांपल एंड दैट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो एक ही एक्सपेंस आता है, एसेट से आता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ओके। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। सो फिक्स एसेट्स में कौन से आते हैं? टेंजिबल, इंटेंजिबल, ओके। टेंजिबल में क्या आएगा? टेंजिबल मींस जिसको आप छू सकते हो, दे आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ओके। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, ये सारा किस में आएगा? टेंजिबल में आएगा। इंटेंजिबल ओनली 4 एसेट्स इज देयर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ओके। तो ये 4 ही इंटेंजिबल में आते हैं, बाकी जो है टेंजिबल में आते हैं, ओके। सो टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन फिक्स एसेट्स, ओके, बराबर। उसके बाद जो है आपके गुड्स, ओके। तो गुड्स यानी क्या होगा? गुड्स यानी परचेज, ओके। सो परचेज आल्सो कम्स इन रियल अकाउंट। परचेज, सेल्स, देन परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारा किस में आएगा? रियल में आएगा। इसके अलावा गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, ओके।
गुड्स गिवन फॉर डोनेशन भी इसमें रियल में आएगा, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट वो भी इसमें आएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वो भी इसमें आएगा. गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. ओके, तो ये सारा किस में आएगा? रियल में आएगा. ओके, सो एसेट्स प्लस गुड्स, एसेट्स प्लस गुड्स ये सारा किस में आएगा? रियल अकाउंट में ही आएगा. ओके, तो जितने भी आपके एसेट्स है, एसेट्स प्लस ये गुड्स, ओके, किस में आएंगे? रियल एसेट्स में ही आएंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है दैट इज अ नॉमिनल. ओके, सो राइट डाउन नॉमिनल हेडिंग, उसमें लिखो इन नॉमिनल अकाउंट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट, income and expense. In nominal account, there are two main types of accounts. First one is income and second one is expense. Okay. So first one income, heading दे दो income. Income में कौन से आएंगे? That is a discount received. Okay. Discount received, brokerage received, discount received, brokerage received, interest on investment, interest on investment, लिखा आपने? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. हाँ बोलो. हाँ बोलो. Interest on investment, then dividend received, commission received, interest on drawing, interest on drawing. So all this is included in income. Okay. Next one is, next one example is, ओके, अभी क्या मैं वॉकिंग कर रहा हूँ इसलिए शायद होता होगा ऐसा. सो मैं बैठ जाता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट वन दैट इज हेडिंग इज एक्सपेंस. राइट डाउन न्यू हेडिंग एक्सपेंस. ओके, एक्सपेंस में फर्स्ट लिखो आप वेजेस, कॉमा कैरेज इनवर्ड, कॉमा carriage outward, carriage inward, comma carriage outward, octroi, salary, comma telephone bill, comma light bill, comma next one, selling and distribution expenses, comma advertisement expenses, selling and distribution expenses, selling and distribution expense, selling and distribution expense. लिखा आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखा आपने. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. Next one is financial expense, financial expense, comma interest on capital, interest on capital, comma interest on bank loan, interest on bank loan. Next one,
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के बाद बैड डेट, this man, who is that, the richest man, कॉमा right? लॉस बाय थेफ्ट, Bill Gates, right? Why he comes to Bangalore, Comma. Hyderabad, and Delhi, and he Loss by fire. Three of the students, right? Who has got more than Comma. 3.5, Donation. and those people are called and डोनेशन, taken to Comma. America, and they are paid nicely. But Charity. their brain is wanted over here, right? That's why I told you 25 lakhs, right? Comma. Indians are working over there mostly Gujarati also. Okay, so because they get flow of goods, services, technology, and labor is available. Next one. You can. This is called. I mean, the transfer of labors from one country to another country, and as a result, Stationery. the flow of goods, Comma. services, technology, and labor is easily available. Printing, comma. Um, improvements have been taken place due to globalization. Discount allowed, Obstacles of trade between two nations have been removed. Comma. Freely you can have the trade. And number two, such a condition has been created so that capital Rent exchange paid. can Rent easily paid, take place comma. between two nations. So the exchange of money can be done between Rent two paid, nations. comma. And third, obstacles in the way of exchange of technology have been Next removed. one. Now we are making what do you call that Commission paid, comma. train, right? No, we are making, right? What do you call that? Taxes, comma. Metro, right? We are making. But who is Taxes, Japan? comma. It is not Indian technology. We have got Japan. Japan scientists. Japan Then technicians next one. have given this important thing for us, right? And from there, we are able. Indians are working on it, first, but all these are done by Japanese technicians. Legal expenses, Obstacles Legal to the expenses. exchange of technology have been removed. So our people can. Now what is legal expense? Anyone please? People can come to our country What is legal expense? and help and free exchange of labor. Maybe there. Legal expense होता क्या है? Anyone please? As I told you, then if you are equipped well, you can go to any part of the world for a Huh? job. Okay? And effects What is of called legal expense? globalization, right? Mixed effects of globalization have been there on Indian economy. 2 मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी. Many advantages and disadvantages are there as follows, right? And because of globalization, maybe तब तक आप लीगल एक्सपेंस क्या है सोच के रखो. ओके. number one, what is the advantages? What is called legal expense? Anyone please? FDI. Now our Prime Minister Narendra Modi goes to various places and he said, please come and invest in my country. And that is what foreign लीगल एक्सपेंस होता क्या है? is encouraged due to globalization. Number two, goods produced in the developed countries can easily be obtained due to globalization. What is called legal expense? किसी को पता नहीं है अभी? Pants, shirt, watches, right? Most of the we can, I mean, import from Huh? other countries. And developing countries like India can withstand competition. Okay. at So very legal low expense. level due to globalization. And today India is हाँ, yes. If we appoint, हाँ, अभी होता क्या कि business में suppose if you are doing business of manufacturing television, okay, आपकी हाँ बोलो, disadvantages. हाँ बोलो, Expected हाँ बोलो. success has not been attained in finding solution to the problems. नो बेटा, इंश्योरेंस नहीं आएगा. ओके. लीगल एक्सपेंस मैं आपको समझाता हूँ क्या है कि फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन. ओके. सपोज इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन. ओके. तो आप टीवी बना रहे हो. ओके. तो अभी होता क्या है कि टीवी इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री. ओके. देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन होल कंट्री और इन होल वर्ल्ड. ओके. जहाँ पे आपका बिजनेस आप कर रहे हो तो वहाँ पे वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके. अभी होता क्या है कि टीवी इज अभी टीवी उसमें क्या है कि एक भी वायर जो निकल जाता है अंदर का. ओके. तो जो टीवी चलता नहीं. ओके. सो एग्जांपल जैसे आपका कोई टीवी है. ओके. शोरूम में आपने अभी देखो टीवी भी शोरूम से ही बिकता है, डायरेक्टली कंपनी बिकती नहीं है, डायरेक्टली बेचती नहीं है. ओके. तो वो डीलर्स थ्रू ही नेटवर्क होता है उनका और वो डीलर्स थ्रू ही टीवी बेचते हैं. ओके. तभी होता क्या है कि जैसे आपने यू आर मैन्युफैक्चरिंग टीवी. ओके. एंड यू सेलिंग द टीवी विद द हेल्प ऑफ डीलर्स. ओके. अभी
आपका जो गुड्स है वो हर डीलर के पास जाता है, वहां से बिकता है। अभी आपका जो टीवी है गोडाउन में पड़ा हुआ है, ओके, वो आपको फ्रेश पीस दे दिया, ओके, घर पे गए चालू किया और चालू हो गया, ओके। बट होता क्या है कि बाद में कुछ उसमें जो वायर है वो स्पॉट हो गया, ओके, तो टीवी बंद हो जाएगा, ओके। तो सपोज आपने जो टीवी महंगा लिया है, कॉस्टिंग इज मोर देन 50,000, ओके, तो क्या होगा कि भाई 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा यार, दो अभी तो टीवी लिया है, अभी बंद हो गया, ओके। तो आप क्या करोगे, शोरूम वाले को कांटेक्ट करोगे, भाई आपका जो टीवी है वो चल रहा नहीं, ओके। तो शोरूम वाला क्या करेगा कि भाई कंपनी को कांटेक्ट करेगा कि भाई जो टीवी है वो नहीं चल रहा है, ओके। तो टीवी नहीं चल रहा है तो उससे क्या होगा कि भी बाद में क्या होगा कि भी जो मैटर सॉल्व हुआ नहीं है, क्योंकि वो पेंडिंग हो रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, तो पेंडिंग नहीं, मैटर सॉल्व हुआ ही नहीं, ओके, आपका वैसे और 10-15 दिन निकल गए। तो होगा क्या कि बाद में आपको गुस्सा आएगा, आप उस पर केस कर दोगे, ओके। तो आप जैसे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा कुछ निकलता है और आपको कुछ आंसरेबल नहीं होता है, तो आप उस पर केस कर सकते हो और फ्री ऑफ चार्ज में कंज्यूमर फोरम में आप उसका जो केस उसके अगेंस्ट में आप कर सकते हो। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। ओके, ओके। अभी थोड़ा आज रहेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा हमेशा के लिए, ओके। मैं सुनाओ सी यार कि यहाँ पे सपोज कोई आपने जो टीवी लिया है वो बराबर नहीं चल रहा है, और हाँ, हाँ बोलो, हेलो, हेलो। हाँ, सपोज आपने टीवी, हाँ बोलो, आपने जो टीवी लिया है, ओके, जो टीवी लिया है आपने वो बराबर नहीं चल रहा है, ओके, एंड कॉस्टिंग इज मोर देन 50,000। तो उससे क्या होगा, बाद में आपको जो आंसर नहीं मिलेगा, आपको गुस्सा आएगा। तो उससे क्या होगा कि सॉरी, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस पर केस कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी पे आप केस कर सकते हो। तो अभी क्या होता है, जो ओनर है उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि भाई हर एक केस में वो कोर्ट में जाएगा, ओके। सो दे विल अपॉइंटेड लॉयर, ओके। तो वो क्या करेगा, जो ओनर है वो अपने कंपनी में एक लॉयर को अपॉइंट करेगा। तो जितना भी ये लीगल मैटर्स है, द लीगल मैटर्स वाज हैंडल बाय लॉयर, ओके। सो जितना भी लीगल मैटर है, ओके, सो लीगल मैटर इज हैंडल बाय लॉयर, ओके। तो जो लॉयर है वो सारे लीगल मैटर हैंडल करेगा, ओके। तो सो दैट्स वाई जो भी खर्चा होता है लीगल, जो भी खर्चा होता है लीगल, ओके, वो कौन देखेगा, लॉयर देखेगा, ओके। तो लॉयर को फीस पे करनी पड़ेगी। तो जो भी लॉयर है उसको फीस पे करनी पड़ेगी, ओके। तो जो भी दैट इज कॉल्ड लीगल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड लीगल एक्सपेंस। और इसके अलावा क्या होता है कि जो भी एग्रीमेंट होता है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती, ओके, दे आर सेलिंग थ्रू डीलर्स। तो जितने भी डीलर्स है उनके साथ उनका एग्रीमेंट होता है, ओके। कंपनी के जितने भी डीलर्स है उनके साथ क्या होता है, उनका एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट ऑलवेज इज ऑन स्टैम्प पेपर। तो जो भी एग्रीमेंट है वो किस पे होंगे, स्टैम्प पेपर पे ही होंगे, ओके। तो स्टैम्प पेपर का वो क्या है, लीगल एक्सपेंस है। स्टैम्प पेपर क्या है, वो लीगल एक्सपेंस है, ओके। सो दे आर कॉल्ड लीगल एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज कैरेज इनवर्ड, एनीवन प्लीज। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, एनीवन प्लीज। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड।